Okay, once again, back to the channel. This is the part 2 of the PYQs 2023. If you are new to this channel and watching this video as your first video, I have already prepared the PYQ for the UGC NET from 2018 to 2019, 20, 21, 22, and 23. First part is already been completed. In these videos, I am discussing the pattern which has been followed. I have given the tips and tricks to crack the exam or particular question. I'm explaining the concept if there is one in any question. So till now we have almost completed more than 500 questions and 500 concepts. And with my advice, I hope my students are getting benefit. With this, I will be starting this video. Okay, so this is a question from the constitutional law. And if you are new to this channel, and if you have not watched my earlier video, so I have solved this question. We have solved these questions too many times because this is a very straightforward question and very important question from the Keshwananda Bharati versus State of Kerala case. The question is the preamble of the Constitution of India can be amended, cannot be amended, can be amended only by the Supreme Court. Four, can be amended because it is a part of the basic structure of the Constitution. So the answer to this question is can be amended, and we have discussed the basic structure doctrine and different cases in detail in the earlier videos. Keshananda Bharati, Golaknath versus State of Punjab, Sankari Prasad, and Sajjan Singh versus State of Rajasthan. These are some important cases. Some of the amendments are also there. It is a tussle between Article 368 and Article 13 of the Indian Constitution. So yes, the basics, according to the basic structure doctrine, the preamble of the Constitution can be amended, but it should be only in the positive sense, or only addition can take place, no subtraction can be there. For example, in the 42nd Constitutional Amendment 1976, the words like socialist and secular and integrity has been added in the Indian Constitution. I hope point is very clear. So we will be taking the next question. Okay, so this is an interesting question, and the concept is also very interesting. Halaki, this is a very important part question from the an important part, that is fundamental right, Article 19, which is related to freedom of speech and expression. So the question is, according to Kaushal Kishore versus State of UP, the fundamental right under Article 19, that is the right to freedom of speech and expression, or बहुत सारी rights हैं, but this question basically deals with the right to freedom of speech and expression, is available against state actors only, non-state actors only, state as well as non-state actors, state under Article 12 only. तो इसको समझते हैं स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स से क्या मुराद है यहाँ पे. The thing is that the fundamental rights that is enshrined in the Constitution of India can only be are only available against the state. ठीक है. स्टेट क्या है, स्टेट इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो उसकी एक पूरी की पूरी डॉक्ट्राइन है. अजय हासिया वाला केस इज देयर, तो उसमें हम डीप डाउन नहीं जाएंगे. तो बेसिकली जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं दैट आर ओनली एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट. ठीक है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ आर्टिकल 12, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21, even it can be invoked again the non state actors also. मतलब जरूरी नहीं है कि जो भी चीजें आर्टिकल 12 में फॉल कर रही हो उसी के अकॉर्डिंग ही वो एनफोर्सेबल हो. कुछ सर्कमस्टेंसेज में आर्टिकल 19 और 21 जो है दैट आर आल्सो एनफोर्सेबल व्हेन द एक्टर इज नॉन स्टेट एक्टर. ठीक है. तो आई होप समझ में आ गया होगा कि स्टेट एक्टर कौन है, नॉन स्टेट एक्टर कौन है. नॉन स्टेट एक्टर का मतलब इट मे ऑल्सो इंक्लूड द प्राइवेट एंटिटीज दैट इज नॉट मेंशन अंडर आर्टिकल 12. ठीक है. तो स्टेट एक्टर्स वो हैं जो आर्टिकल 12 में मेंशन है. नॉन स्टेट एक्टर्स जो है जो आर्टिकल 12 में नहीं मेंशन है, इट कैन बी अ प्राइवेट पर्सन. आई होप द पॉइंट इज वेरी क्लियर. सो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so another landmark judgment is discussed. The question is, in which of the following cases has it been held that the doctrine of basic features do not constitute a limitation on the legislature while enacting ordinary legislation? And the options are Indira Gandhi versus Raj Narayan, 2 Swadeshi Industries versus Durkman, 3 E.P. Royappa versus State of Tamil Nadu, and 4 is Kishore versus State of Rajasthan. And the answer to this question is very simple. That is Indira Gandhi versus Raj Narayan.
ठीक है, तो आई विल नॉट बी डिस्कसिंग दिस केस बिकॉज आई हैव गिवन ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट। ठीक है, तो हम सारी की सारी उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी है तो अभी तक तो ये केस आपके नोटबुक में होगा, क्योंकि ये केस कई बार पूछा जा चुका है पीछे भी, if not as an answer but as an options, and you know that my advice is that you should also write down all the options। ठीक है, ताकि एक क्वेश्चन में से हम पांच पांच क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट आई नीड टू से इन दिस क्वेश्चन, सो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, another very easy, interesting, and tricky question from the Constitution of India and directly from the fundamental rights, which is the most essential part of Constitution when it comes to exams। ठीक है, एक तो होता है, मैंने बताया है कि किस पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बट उसमें भी फंडामेंटल राइट इज द टॉप, इट इज द चेरी ऑन द केक। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज, आई रीड, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स क्रिमिनलाइजेशन ऑफ प्रोहिबिटेड कंडक्ट। आप इसमें गौर देने वाली बात यह है कि आर्टिकल 24 में भी प्रोहिबिशन है। ठीक है, चार ऑप्शन है, आर्टिकल 17 ओनली, आर्टिकल 23 ओनली, आर्टिकल 17 एंड 23 ओनली, एंड आर्टिकल 17, 23 एंड 24 ओनली। ठीक है, तो गौर देने वाली बात यह है कि आर्टिकल 24 is also there and it is there so as to confuse the person। And if you have watched my first introduction video, I have already told that whenever you will be reading the question, then you will read each and every word that is mentioned in the question very carefully। ठीक है, क्यों? The thing is, यहाँ पर मेंशन है क्रिमिनलाइजेशन, तो आर्टिकल 17 और 23 जो है, आर्टिकल 17 डील विद अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग। तो इन दोनों केसेस में देयर इज क्रिमिनलाइजेशन। अगर आप उस कंडक्ट को करते हैं तो आपको क्रिमिनलाइज किया जा सकता है, देयर इज अ penal offense, you can be punished। But Article 24 deal with prohibition employment of children in hazardous industries, but not expressly mandate the criminalization। ठीक है, because it is a prohibitory section। लेकिन अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग को देखें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज एन ऑफेंस एंड अनटिचेबिलिटी इज एन ऑफेंस। ठीक है, तो आई होप मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नथिंग मोर इज देयर टू एक्सप्लेन, सो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so this is very simple question. Take down your notebooks. I all know that if you have gone through my earlier videos, तो आपने इसके notes बना लिए होंगे, क्योंकि ये बहुत important part से question है। The very basic of basic question. This is very basic question that mens rea does not include। It includes intention, it includes knowledge, and it includes reason to believe. But what it does not include is the motive. And where has been motive mentioned in the criminal acts? It is mentioned in Evidence Act, motive, preparation, and conduct. A whole section is there. But now you just check out कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वो कौन सा सेक्शन हो चुका है। although ये नहीं पूछा जाता, but this is an extra information which I am giving, so very straightforward question, nothing to explain, so I will be taking the next question। Okay, another very straightforward question which is there is nothing to explain, but only what I can suggest or I can advise is that just take out your notebook, and if you are following my channel and you watching the videos, you have already made that notebook, I hope। और उसमें एडवाइस यही है कि whenever a question of IPC comes from earlier years, just note down what which section of BNS is there. Just like what is the section for right of private defense extend to causing the death under which provision of the IPC. So the answer is section 100 and section 103. So now just mark where it is mentioned in the BNS. So that is the only advice. So I will be taking the next question. Okay, so same as earlier, nothing to explain, very straightforward question. Only advice is just go and see where the criminal conspiracy is mentioned under BNS. The question is A1 and A2 plan to commit robbery. Mere agreement to commit robbery. This offense is punishable under which provision of the IPC? So the question is punishable. So punishable under section 102, 120B, and mentioned and defined in section 120A. Now just check out where it is in the BNS. So moving on to the next question.
Okay, so another very easy question. So I'm going to just read it. A is lawfully arrested by Z, who is a police officer. A loses his self-control by grave and sudden provocation due to the arrest, and kills Z. A shall be punished under. So I will read it in Hindi only. क्या कह रहा है ये कि that A is lawfully arrested by Z. ए को जेड ने लॉफुली अरेस्ट करने गए बिकॉज जेड इज अ पुलिस ऑफिसर, लेकिन ए लूजेस सेल्फ कंट्रोल बाय सडन ग्रेव प्रोवोकेशन। सडन ग्रेव प्रोवोकेशन दी गई, उसकी वजह से ए ने अपना जो वो है सेल्फ कंट्रोल है वो लूज कर दिया, एंड किल्स जेड, और लूज करके उसने जेड को मार दिया। तो यहाँ पर कौन सा ऑफेंस होगा? ठीक है, यहाँ पर ऑल दो इसको क्वेश्चन को ऐसे बनाया गया है कि ये लगे कि दिस इज सडन ग्रेव प्रोवोकेशन, सो द आंसर विल बी 304, दैट इज culpable homicide not amounting to murder, but the answer is section 202, he will be liable for murder, that is culpable homicide amounting to murder। क्योंकि सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन वो उसको अरेस्ट करने गया था, अपनी लॉफुल ड्यूटी करने गया था, तो इससे जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन की एक्सेप्शन है ना। इफ समवन इज गोइंग टू परफॉर्म हिज लॉफुल ड्यूटी एंड आपको उससे ग्रेव सडन ग्रेव प्रोवोकेशन हो जाती है, तो ये एक्सेप्शन काम नहीं करेगी, इट विल बी कंसीडर्ड एज मर्डर। सो इट इज एन एक्सेप्शन टू द एक्सेप्शन ऑफ सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। आई होप आई have made my point clear. So we will be moving on to the next question. Another question which is there just to note down. All sums realized by way of penalties under the Competition Act are credited to, and the answer is CFI, that is Consolidated Fund of India. And the statutory provision has been mentioned in the explanation part, so I don't think I need to explain anything more. So I will be going on to the next question. Another easy and straightforward question from the माइनर एक्ट। माइनर एक्ट को लेके मैं एडवाइस पहले भी दे चुका हूँ, इस वीडियो में दोबारा भी देता हूँ कि माइनर एक्ट में डेफिनेशन क्लॉजेस, इफ सम कमीशन इज दियर, उसका क्लॉज, वो आपको, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पढ़नी पढ़नी होती है। और देखो यहाँ पर क्वेश्चन उसी से आया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज हेडेड बाय अ चेयरपर्सन हु इज, and the answer is minister in charge of department of consumer affairs in central government, and the option one which is there, that is retired judge of the supreme court of india, is just there so that to confuse you, है ना। तो आपको मैंने जो एडवाइस दी है आप उस पे चलो। आप माइनर एक्ट के जो भी कमीशंस हैं, जो भी चेयरपर्सन्स हैं, किस सेक्शन में मेंशन है, और डेफिनेशन क्लॉज कि मैं उसकी डेफिनेशन क्या है, वो एटलीस्ट गो थ्रू आपको कर दी ही करनी है, सो दैट आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए और इन क्वेश्चन से आपको एज मिलेगी अपॉन अदर स्टूडेंट्स। सो हैविंग सेड दैट आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द कंपटीशन कमीशन, कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नथिंग टू वरी। पढ़ते हैं। डोमिनेंट पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो डोमिनेंट पोजीशन उसको कहते हैं कि जब कोई भी प्लेयर या कोई भी एंटरप्राइज जब मार्केट को मैनिपुलेट कर सकती है, ठीक है, या कंज्यूमर के बिहेवियर को मैनिपुलेट कर सकती है, तो उसको हम कहते हैं डोमिनेंट पोजीशन। अब ये क्वेश्चन, अब ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इन रेलेवेंट इंटरनेशनल मार्केट, ए एंटरप्राइजेस ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ मार्केट फोर्सेस इन इंडिया, बी affecting competition or consumer of relevant market in India in its favor, yes, D, the position of strength enjoyed in relevant markets in India। ठीक है, तो अब इन चारों को ना, ये तो थोड़ा सा कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत इजीली आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, दैट दो ऑप्शन है, पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ इन द रेलिवेंट इंटरनेशनल मार्केट, पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ enjoyed इन रेलिवेंट मार्केट इन इंडिया। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ तो को एग्जिस्ट करना थोड़ा सा अटपटा लगेगा ना। ठीक है, तो इसीलिए एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपटीशन एक्ट 2020 2002। सो इससे थोड़ा सा आप थोड़ा सा लीगल रीजनिंग लगा के जो ऑप्शन ए है उसको थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हैं। डोमिनेंट पोजीशन आई हैव मेड यू अंडरस्टूड कि क्या होती है। ठीक है, कभी भी मार्केट को कोई भी एंटरप्राइज अगर मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है या फिर कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो उस और वो खुद बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोजीशन या स्ट्रेंथ उसके पास होती है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होती है, तो उसको हम डोमिनेंट पोजीशन बोलते हैं। सो आई होप आई एक्सप्लेन्ड एंड आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, this question is from false imprisonment, that is from thought, I think। और ये बहुत ही इजीली लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन है।
बहुत इजी क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग आर नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट फॉल्स इम्प्रिजमेंट? ए, टोटल रेस्ट्रेंट ऑन लिबर्टी ऑफ अ पर्सन। इम्प्रिजमेंट होगा तो टोटल रेस्ट्रेंट होना कंपलसरी है, तो ए ऑप्शन तो होगा ही होगा, तो हमारा जो ऑप्शन टू है वो कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन बचते हैं 1, 2, 1, 3 एंड 4, दैट इज ए, बी एंड सी। तो अब हम बी को चेक करेंगे। डिटेंशन में भी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ये भी हो सकता है, तो ए और बी तो होंगे ही होंगे। तो अब हमारा जो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया वो दोबारा से बी ही है अभी तक। थर्ड पढ़ते हैं, इट शुड बी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years एट लीस्ट। इट इज नॉट मेंशन्ड, एनी पीरियड इज नॉट मेंशन्ड फॉर फॉल्स इम्प्रिजमेंट आई थिंक। सो सी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन बचता है। सी तीनों में है, तीनों एलिमिनेट हो गए, तो बचा ओनली 3। सो वी डोंट नीड टू चेक द लास्ट वन ऑल्सो। सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू टैकल दिस क्वेश्चन थ्रू द लॉजिकल रीजनिंग। And I have already told that the tool of elimination saves you time, and time is one of the important and crucial thing in any exam. ठीक है? तो with this being said, I will be taking the next question. Okay, so this is question from the definition part of the law of thoughts. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें दो तरीके का डिफिनेशन होता है। एक तो होता है लाइबल और एक होता है स्लेंडर। तो स्लेंडर ऐसे स्पीक, तो हम समझ सकते हैं कि वो बोला गया है, लिखा हुआ नहीं है। बट द अदर फॉर्म दैट इज लाइबल इज दैट इन द रिटन फॉर्म। अगर किसी न्यूज़पेपर ने किसी से रिलेटेड कोई ऐसी स्टेटमेंट छाप दी जो कि फॉल्स है ना, और अब वो छपी हुई है प्रिंटेड फॉर्म में, तो उसको हम लाइबल बोलेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिफेमेशन, बिकॉज बट द स्टेटमेंट शुड बी फॉल्स। ठीक है, तो वही ऑप्शन पढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग आर नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर लाइबल? इट इज द डिफेमेशन ऑफ परमानेंट फॉर्म, 100%। तो सिर्फ बी ऑप्शन कैंसिल होता है 2, तो अभी हमें चेक करना पड़ेगा। द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट द वर्ड्स आर फॉल्स लाइज अपॉन द प्लेंटिफ। नो, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन द डिफेंडेंट। ठीक है, मेरा डिफेमेशन हुआ है, मैंने केस फाइल किया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज करता है डिफेमेशन के केस में ऑन द डिफेंडेंट। तो यानी कि बी इज फॉल्स, तो बी तीनों में फॉल्स है, तो ऑप्शन हो गया 4। इसके आगे पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस आई थिंक आपने अभी तक बिल्डअप कर लिया होगा, अगर आप मेरी सारी एडवाइस को फॉलो कर रहे हैं, नोटबुक बना रखी है, मार्किंग कर रहे हैं, तो ऐसे आंसर को सॉल्व करने में आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना मेरे को लगता है आई थिंक। होपिंग ऑल दीज थिंग यू आर डूइंग, सो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so this is an out of the blue question from the syllabus part. ठीक है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चंस में आ जाता है, बट इतना मतलब टफ भी नहीं है, थोड़ा इजी है। अगर हम इसको थोड़ा सा गो थ्रू करें तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ लीगल रीजनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, ऐसा नहीं है कि इसके सारे ऑप्शन मेरे को ही पता हो, तो आई विल ऑल्सो बी टेकिंग द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट? ए, इट इज द प्रॉमिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट। प्रॉमिसरी नोट है गवर्नमेंट का, तो 100% कोई ना कोई तो अथॉरिटी होगी जो प्रॉमिस कर रही होगी। तो ए इज करेक्ट। अब ए किसी और में है ही नहीं, तो आंसर इज ए, as simple as that, and B is also correct I think, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन है। It is regulated by Indian Securities Act 1886, which has also been mentioned in the explanation part। तो जरूरी नहीं है हमें ऑप्शन सारे ही पता हो या आंसर आ रहे हों, बट हमारी एक सोच, एक लीगल रीजनिंग डेवलप हो जाती है गोइंग थ्रू 5 years और 3 years LLB और 5 years BLLB, एंड देन गोइंग टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर थोड़ी भी हमने ढंग से सब्जेक्ट्स गो थ्रू करें तो एक जुरिस्प्रूडेंस और इस सारे की बेसिस पे हमारी एक लीगल रीजनिंग डेवलप हो जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट कई सारे क्वेश्चंस को आंसर किया जा सकता है, और अगर आंसर नहीं भी किया जा सकता तो बहुत से ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, विच विल इवेंचुअली हेल्प यू इन मेकिंग द करेक्ट चॉइस और टेकिंग द करेक्ट चॉइस। ठीक है, सो विद दिस आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज ऑल्सो अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, इसका आंसर मेरे को भी नहीं पता है, बट मैं एक एडवाइस आपको देना चाहता हूँ कि इफ देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, है ना, तो आप चारों ऑप्शंस को पढ़ो। अगर आपको चारों में से लॉजिकल रीजनिंग या लीगल रीजनिंग के बेसिस पे कोई भी अटपटा नहीं लगता है, तो चारों ऑप्शन को टिक मारो, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यू हैव टू टिक इवेंचुअली। सो दिस इज द बेस्ट ट्रिक विच यू कैन यूज, कि चारों ऑप्शन को पढ़ो, और अगर अटपटा कोई भी नहीं लग रहा तो चारों को करेक्ट मार दो, और अगर अटपटा लग रहा है तो उसको हटा के बाकी 3 को मार दो, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, बट ऑन द बेसिस ऑफ योर लीगल रीजनिंग। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज नॉन ऑब्स्टेंस क्लॉज इन सेक्शन 145 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? द ऑप्शन ए इज dispenses with the procedure under 200 of CRPC। आई डोंट नो द आंसर, बट अटपटा तो नहीं लग रहा।
प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंटेंट एंड विटनेसेस ऑन ओथ इज डन अवे। ठीक लग रहा है। एफिडेविट ऑफ कंप्लेंट एंड विटनेस कैन बी एक्सेप्टेड, होता ही ये बेसिक प्रोसीजर होता है। डी, सॉन स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग बाय द मजिस्ट्रेट इज डिस्पेंस विद, होता है। अब मेरे को आंसर नहीं पता, लेकिन ये चारों में से कोई भी ऑप्शन मेरे को अटपटा नहीं लगा। So if I was sitting in and giving this exam and I know that there is no negative marking, so I will be ticking the option 4 A, B, C, D, which is also the correct option. तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। आई होप यू हैव लर्न दिस थिंग, so I will be taking the next question. Okay, so this is also a tough question depending upon your logical reasoning, legal reasoning और आप कितने acquainted हैं कुछ facts के थ्रू। तो इसमें अपना अपना होगा, लेकिन मैं आई विल रीड द क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेसली कंटेन्स अ प्रोविजन दैट राइट टू बियर आर्म्स एज अ फंडामेंटल राइट। तो देखो एक्सप्रेसली पता है, चार ऑप्शन है। इंडियन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1867, कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998। तो क्लियर कट पता है कि इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ह्यूमन राइट्स एक्ट में भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। और हमने कई बार सुना है कि यूएस में लोग आर्म्स कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग हो किसी पेपर में और ये क्वेश्चन आ जाए तो देयर इज नो नीड टू आंसर, बट बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन यूजीसी नेट, सो we can take a calculated guess that is US, and answer is also B only, that is the US constitution, although it is a tukka based on legal and logical reasoning and थोड़ी सी जागरूकता या फिर पता चीजें पता है तो उसके बेसिस पे दैट टू व्हेन द exam is there is no negative marking in the exam. So with this advice and the way I would tackle this question, I will be moving on and taking the next question. Okay, so this is a tricky question, very very tricky question. क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सप्रेसली स्टेट्स दैट इट शैल बी द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। यूएसए, साउथ अफ्रीका, इंडिया, यूके। ठीक है, आई डोंट नो अबाउट other countries, but in India, it is not expressly stated in the constitution. We take it from the Keshavananda Bharati and other judgments which are there, landmark judgments which are there. Okay, and if you have seen my first video that is of introduction, I've expressly said that you should be in the boundary of the question which has asked in that particular exam, है ना? उसके बाहर हमें बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है, एंड वी हैव टू टेक एवरी वर्ड ऑफ द क्वेश्चन सीरियसली, बिकॉज उसी से ट्रिकी क्वेश्चन ट्रिकी बनता है। तो यहाँ पर वर्ड है एक्सप्रेसली, डबल कॉलम में। ठीक है, तो एक्सप्रेसली स्टेट, तो एक्सप्रेसली स्टेट करते हैं दो ही कंट्रीज हैं, दैट इज यूएसए, जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली स्टेट करता है दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, and South Africa is also there, which states that it expressly states in the constitution, लिखा हुआ है। So with that being said, India कहता है, but it comes through the case laws like केशवानंद भारती and different other case laws which are there, है ना? एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है दैट इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। तो यहाँ पर ट्रिक यही है, इसलिए इसका ऑप्शन जो बनता है, जो एनटीए ने भी बोला है, दैट इज ए एंड बी, यूएसए एंड साउथ अफ्रीका। सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड ट्रिकी क्वेश्चन है। So we will be taking the next question. Okay, so this is an interesting question from constitutional law. The question is, consider the following statement. A, fundamental rights are expressly provided in the US Constitution, which is true. तो चार ऑप्शन में है। Restrictions of fundamental rights are expressly provided in the US Constitution. I don't know. C, fundamental rights and human rights are same in India to up to some extent, है ना? And D, directive principle in the Indian Constitution are not enforceable by courts. या सो ये डी भी चारों में है। तो अब हम इसको एलिमिनेशन के थ्रू तो कर नहीं सकते भाई, है ना? अब हमें पता भी नहीं है कि सही ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन होना चाहिए ए, सी एंड डी, फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट आर सेम इन इंडिया। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा गया है, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा वेग है, बट एनटीए ने इसका आंसर माना है ए और डी ओनली। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो सी भी हो सकता है, बट I have also mentioned why it cannot be C, when because we have to take the question from in the boundary, but क्योंकि इसमें कोई बाउंड्री दिख भी नहीं रही एक्चुअली, तो ये थोड़ा वेग क्वेश्चन है। हालांकि मैंने इसका ऑप्शन इनकरेक्ट और एक्सप्लेन भी इनकरेक्ट के तौर पे ही किया है, बट ये करेक्ट भी हो सकता था।
तो इस तरीके के क्वेश्चन एनटीए को देने से बचना चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा वेग नेचर के हों। ठीक है, क्योंकि सिंपल फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स आर सेम इन इंडिया। मतलब इस स्टेटमेंट से ज्यादा वेग स्टेटमेंट क्या हो सकती है, हो भी है भी और नहीं भी, दोनों तरफ से। ये तो फिर टॉपिक ऑफ डिबेट और डिस्कोर्स हो गया ना। एंड व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्टिव, तो ऑप्शन बहुत सटीक और क्लियर होने चाहिए, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था। तो एक बाउंड्री बन रही है क्वेश्चन की, बट इस क्वेश्चन में कोई बाउंड्री बनती हुई, इस ऑप्शन इस स्टेटमेंट में कोई बाउंड्री बनती हुई नहीं दिख रही। सो इट्स अप टू यू नाउ, you decide. So I will be taking the next question. Okay, another interesting question and a tough one, because Barendra Kumar Ghosh versus Emperor और महबूब शाह versus Emperor दोनों cases are related to section 34. बट आपके लिए केस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज क्योंकि आपको सारे ऑप्शन मिल गए, सारे लैंडमार्क जजमेंट मिल गए टू नोट डाउन इन योर नोटबुक। एंड ऑल्सो एक और काम मिल गया कि सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन, वेयर इज इट इज नॉट मेंशन्ड अंडर विच प्रोविजन ऑफ द बीएनएस, और अगर मेंशन है तो सेम है कि डिफरेंट है, तो ये चीज आपको नोट डाउन करने की मिल गई। समझाने वाला पोर्शन कुछ इसमें है ही नहीं, बिकॉज क्लियर कट केस ऑफ लैंडमार्क जजमेंट है, आपको याद होना चाहिए, इसको लिख लीजिए, रिमेंबर कीजिए, रिवाइज कीजिए। सो दैट इज दी ओनली एडवाइस। एंड विद दिस बीइंग सेड, आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर इम्पोर्टेंट एंड वेरी 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 इजी क्वेश्चन। इजी कैसे, वो अभी समझ में आ जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू डेथ पेनल्टी। ए, डेथ सेंटेंस फॉलो डेथ थ्योरी विच इज ट्रू। सो फोर्थ ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, बचे तीन ऑप्शन, वन टू और थ्री। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिमूव डेथ सेंटेंस, कहाँ से? वी डोंट हैव एनी प्रूफ और एविडेंस that Indian Parliament, and but we have evidences that they want to stretch it, because पॉक्सो आया है, रेप केसेस में पेनल्टी को और बढ़ाया गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन गलत है, तो बी तीनों में है, तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली कौन सा हो गया, फर्स्ट। ठीक है, नाउ यू नोट डाउन अदर ऑप्शंस बिकॉज दे दोज आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू, दे शुड बी देयर इन योर नोटबुक, ताकि आपको पता हो, ताकि आप इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आगे पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो जस्ट नोट इट डाउन, बट एलिमिनेशन के थ्रू बहुत इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है। मैंने पहले ही बताया है, जितना लंबा क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करना उतना ही इजी होगा, बिकॉज देयर विल बी लॉट मोर हिंट्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन क्रोनोलॉजी पूछ ली, अब हिंट तो क्या ही है, कुछ भी नहीं है उसमें, या तो पता है या तो नहीं पता। ठीक है, इसीलिए आपके क्या नाम है, जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जितना लंबा पैराग्राफ दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करना उतना ही इजी होता है, क्योंकि उसमें हिंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। विद दिस बीइंग सेड, आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम फंडामेंटल ड्यूटीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल आंसर है, ACE इज द आंसर। और ये तो अगर आपको नहीं पता है तो आपकी मतलब आपकी तैयारी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टू गो थ्रू माय ऑल द वीडियोस, क्योंकि ये चीज़ें हम कई बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एक अलग से वीडियो है इंट्रोडक्शन की, उसमें डिस्कस कर चुके हैं क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और पढ़ने में भी कितने पोर्शन आपको पढ़ना होता है जिनसे मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। तो ये तो आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक एक आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सारे इंपॉर्टेंट, और लास्ट 10 तो पता होने ही चाहिए, उंगलियों पे होने चाहिए। एंड ऑल द एंड ऑल द शेड्यूल्स विच आर देयर उंगलियों पे होने चाहिए। ठीक है, तो ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, ब्रीफ में अभी भी बता दिया। सो आई होप यू आर मेकिंग गुड नोट्स। So with this being said, taking the next question. Okay, another important question और very easy question, ठीक है। अब मेरे लिए तो कुछ ज्यादा इजी है, अब आपका पता नहीं, आपने अभी तक अगर जो मेरी एडवाइस मानी है तो आपके लिए भी इजी होगा। The question is in respect of which of the following items does India does not have, ये लिखने में गलती है, specific legislations to cover them as IP। ठीक है, तो ट्रेडिशनल नॉलेज इज नॉट एक्सप्रेसली कवर्ड, स्ट्रीट आर्ट समझ में आ रहा, बी, है ना। पब्लिसिटी राइट्स आल्सो नॉट एक्सप्रेसली, स्पेसिफिक legislation is not there. Celebrity right, specific legislations are not there, but though they are covered in the different acts like copyright, public rights, street art, publicity right, celebrity right, कहीं ना कहीं copyright में covered है। ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए एक अलग से हमारे पास एक्ट है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, और ट्रेडिशनल नॉलेज से रिलेटेड भी अ, है, बट एक्सप्रेसली इसके लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं है, है ना।
जोग्राफिकल इंडिकेशन और कुछ और पार्ट्स में कवर्ड है। बट फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स वी हैव अ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, है ना? So for the computer program, we have specific legislation. So the answer to this question is A, B, C, D. We don't have any legislation for those, but for computer program, we have a legislation. With this being said, I will be taking the next question. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको ये राइट डाउन करना है, इस क्वेश्चन से सीखना है कि व्हाट इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो कि मैंने आई हैव आल्सो मेंशन इन द एक्सप्लेनेशन, बट इसको आपको और थोड़ा सा जाके जाके पढ़ना है, ठीक है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट? तो राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सोशल जहां पर भी बात आ जाएगी, दो तरीके की देखो राइट्स होती हैं, दैट इज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स। तो फर्स्ट जनरेशन में सिविल राइट्स कवर्ड है, सेकंड में पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स, मेजॉरिटी ऑफ द सोशल राइट्स आर कवर्ड ओनली इन द सेकंड जनरेशन। तो द राइट टू सोशल सिक्योरिटी इज इन द सेकंड जनरेशन। तो ए दो ऑप्शन में है, तो यानी कि बी सी ई या बी डी ई। सो डी चेक करते हैं, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज इन द थर्ड जनरेशन, दैट इज द कलेक्टिव ग्रुप और कलेक्टिव राइट। So the answer is two, that is B C E. Very simple question, और हमें पास इसको सीखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि because in the next question or in the coming PYQs it can be asked that which of these are the second generational human rights or which of these are the third generational human rights. So very important topic. I hope I have explained. So I will be taking the next question. सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम आईटी एक्ट। अच्छा, आईटी एक्ट में माइनर एक्ट है, तो मैंने को जो पुरानी एडवाइस है वो काम करेगी, दैट इज डेफिनेशन क्लॉज, तो आपको पता होना चाहिए, बट इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जब से श्रेया सिंघल वाला केस हुआ है ना, 65A, B और 67, इस तरीके के सेक्शंस जो कि इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट से रिलेटेड है, और श्रेया सिंघल वाला केस कई बार कई सारे जजमेंट्स में पूछा गया है, तो वो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो विद दिस बीइंग सेड, दिस इज दी ओनली एडवाइस। 5 सेक्शन है, इनको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मैंने एडवाइस दी है, शेयर सिंगल को थोड़ा जाकर सर्च करो, और जो ऐसे टर्म्स हैं जो कि आज की दुनिया में बहुत ज्यादा सुने जाते हैं, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डेफिनेशन क्लॉजेस में ऑलरेडी ये पूछे जा चुके हैं अर्लियर ईयर्स में भी, तो इनको जो कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं, एंड इफ यू सी देम इन दी आईटी एक्ट, तो जस्ट गो थ्रू दो सेक्शंस और इंपॉर्टेंट जजमेंट थोड़ा देख लो, उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं माइनर एक्ट्स में से। सो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so this is another interesting question, where we are dealing with the limitation or the boundary or the differences between law and morality। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसी भाव से है। Which of the following statement can given below are correct? A wrong is an act contrary to the rule of right and justice. This is true। तो दो ऑप्शन बचे, ए बी सी और ए डी और ई। तो बी पढ़ते हैं। A moral or natural wrong is an act which is morally or naturally wrong, being contrary to the rule of natural justice, which is also true। तो यानी कि ए बी, तो ए की ऑप्शन बचा वन, तो वन विल बी द करेक्ट आंसर, बट फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। ऑल दो इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट आई हैव गिवन मैनी एग्जांपल्स, तो ये आपको समझना और ज्यादा इजी है, बट फिर भी पढ़ते हैं। लीगली रॉन्ग इज एन एक्ट विच इज लीगली रॉन्ग, बीइंग कॉन्ट्ररी टू द रूल ऑफ लीगल जस्टिस एंड वायलेशन ऑफ द लॉ, विच इज ट्रू। फोर्थ, a legal wrong is a moral wrong and a moral wrong is a legal wrong। So with this clause आपको easily समझ में आ जाएगा this is not correct, because there is a difference। और इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है, किसी बंदे को आपने डूबता हुआ देखा और आप उसको बचाने नहीं गए, तो ये मॉरली तो बहुत ज्यादा रॉन्ग है, बट लीगली ये रॉन्ग नहीं है, ठीक है? तो द स्टेटमेंट डी दैट अ लीगल रॉन्ग इज ऑलवेज अ मॉरल रॉन्ग एंड अ मॉरल रॉन्ग इज ऑलवेज अ लीगल रॉन्ग इज नॉट करेक्ट। ई, natural and legal wrongs cannot form intersecting circles, which is also not true। आर्टिकल 21 इसकी जीती जागती मिसाल है। बहुत सी चीजें आर्टिकल 21 में आर देयर विच आर मॉरली राइट, एंड इट इज एन आर्टिकल विच इज डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ natural justice, and it is given the widest interpretation from मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड आफ्टरवर्ड्स, ठीक है? राइट टू प्राइवेसी हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे वो और भी 50 तरीके की राइट टू इंटरनेट हो, तो इस तरीके की वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन, नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 21 कंटेन करता है। तो यस, देयर इज एन इंटरेक्टिंग सर्किल, intersecting circle is there between natural and legal wrong। So E option is incorrect। I hope I have
explain this thing in very much detail. So with this, we can be moving on to the next question. Okay, so this is a very out of the blue question, very very hard question. इसका आंसर नहीं बता हो सकता. तो just go and check what has been said. ऑप्शन मैंने आपको दे ही रखे हैं. करेक्ट ऑप्शन आपको पता ही है. The question is which of the following statement in relation to the dissenting judgment of Justice Radha Binod Pal in the Tokyo trial. So first go and read what is Tokyo trial. Uh, then these are the options, and the answer is A, that war is beyond the scope of international law. Conduct of war is within the scope of rules of international law, and the Pact of Paris brought about no change in the status of war. These are the correct option. बट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है, और ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए पूछा गया है कि अगर इस पेपर की थोड़ी टफनेस बढ़ाई जा सके. So nothing more. Just go and see what is the Tokyo trial and what is the judgment there. Search on Google, so you will find out. So with this, I will be taking the next question. Okay, so this is the Nuremberg trial. Nuremberg trial, जिसको नहीं पता, एक बार इसको, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है ना, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा और आपने गो थ्रू कर लिया होगा, मैं होप करता हूँ. मैंने एक्सप्लेन भी किया है. दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस ऑन द ट्रायल इन द इंटरनेशनल लॉ. न्यूरम्बर्ग ट्रायल बेसिकली रिलेटेड है कि जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया, उसके बाद जो भी जर्मनी की तरफ से लड़े या फिर जर्मनी इटली की तरफ से लड़े, जितने भी सोल्जर्स थे, उन्होंने जो भी एट्रोसिटीज की, उनके ऊपर ट्रायल चलाया गया था. हालांकि इस ट्रायल की भी अपने आप में कुछ आलोचना है, बिकॉज एक पॉइंट है कि दिस इज ऑन दिस देयर इज अ लॉ विच इज मेड फॉर द ट्रायल. एंड हमें पता है कि क्रिमिनल जस्टिस में या क्रिमिनोलॉजी में लॉज जो बनाए जाते हैं, दैट शुड ऑलवेज बी प्रोस्पेक्टिव. और प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिवली वो तभी इफेक्ट कर सकते हैं जब आप किसी को फायदा पहुंचा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, किसी एक्ट में अगर 5 साल की सजा है और फिर नया कानून बनता है जिसमें उसकी सजा 3 साल कर दी गई है, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली किया जा सकता है अप्लाई. बट अगर सजा बढ़ा के 8 साल कर दी गई है, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली प्रोवाइड नहीं किया जा सकता. दिस इज अ बेसिक कॉमन प्रिंसिपल विच इज फॉलोड इन द क्रिमिनल लॉ. ठीक है, बेसिक जूरिस्प्रूडेंस. बट न्यूरम्बर्ग ट्रायल की एक ये बात बोली जाती है कि द लॉ विच इज अंडर विद द न्यूरम्बर्ग ट्रायल और द प्रिजनर्स आर ट्राइड, दोज ऑल आर ट्राइड. द लॉ इज मेड, जो लॉ बना था वो बाद में बना था, और ट्रायल उनको पुराने क्राइम्स के लिए किया गया. सो इट इज समहाउ रेट्रोस्पेक्टिव और प्यूनिटिव नेचर का था. रेट्रोस्पेक्टिव भी था, प्यूनिटिव नेचर का भी था. सो दिस इज व्हाट वाज अगेंस्ट द न्यूरम्बर्ग ट्रायल. बट न्यूरम्बर्ग ट्रायल इज अगेंस्ट द प्रिजनर, अगेंस्ट द पीपल और द जो लोग हैज फॉट इन द वर्ल्ड वॉर सेकंड फ्रॉम द साइड ऑफ जर्मनी इटली, है ना. तो इनकी तरफ से जो लड़े थे, उनके खिलाफ भी ट्रायल चला था, और इस ट्रायल की 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. दैट इज इट इज द क्राइम अगेंस्ट पीस, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. ठीक है, ये कोर कैटेगरीज इंटरनेशनल क्राइम्स की इसमें बनाई गई न्यूरम्बर्ग चार्टर में, विच वाज देयर. So this is all about Nuremberg trial and Nuremberg charter. Just go through in detail. इसको थोड़ा सा और read कर लेना, because ये this is one of the landmark judgments, और इसके जो भी criticism है वो मैंने बता दी है, और भी है, तो उसको जाके एक बार go through करके सर्च कर लो. That will be more beneficial for you. So with this being said, I will be taking the next question. Okay, so इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला है नहीं, because question is also very explanatory. इस स्टेटमेंट दे रखी है, एक बार इसको go through कर लेना, पढ़ लेना. That is the only advice which I want to give. So just go through it. Another question from the concept of ownership in the jurisprudence. And if you have watched my earlier videos, तो मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट बताता हूँ, जब भी jurisprudence आता है, जो भी एक्ट आता है, कि एडवाइजेबल है कि ये आपको डीप में पढ़ना है, ये वो पोर्शन है. और jurisprudence में बेसिकली सारे जूरिस्ट पढ़ने हैं. 30-35 जूरिस्ट है, वो आपको गो थ्रू करनी है, उनकी स्टेटमेंट्स गो थ्रू करनी है, इंपॉर्टेंट है ना. उनकी बुक्स को पढ़ना है. उसके अलावा ओनरशिप, पोजीशन, राइट्स एंड ड्यूटीज, और सोर्सेज ऑफ लॉ. तो इस तरीके की जो चीजें हैं, उनके जो कुछ चुनिंदा जूरिस्ट है, उनके बारे में आपको पढ़ लेना. उसमें से ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए कि ऑस्टिन की जो डेफिनेशन है ओनरशिप की, उसमें इनडेफिनिट यूजर है, अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन है, और अनलिमिटेड ड्यूरेशन है. तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना. तो इसमें ज्यादा गो थ्रू करने की हमें जरूरत है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है. सो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन.
This is the last question of this video and very important question और बहुत easy question है. That Article 19 of the Constitution of India is automatically suspended if the proclamation of emergency is declared on the ground of, and the answer is war and external aggression and not anything else, because armed rebellion या internal disturbance जो पहले था और failure of constitutional machinery in the state. So in the case of state emergency, that is from 356 to 359 which is there. So in the case of state emergency it is not like that. And जो हमारा आर्टिकल है 359 एक्सप्रेसली बोलता है कि कब फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, एंड दैट टू द आर्टिकल 21 कैन नॉट बी टेकन डाउन इन दैट सर्कमस्टांसेस आल्सो. ठीक है. But article when there is state emergency, article 19 is not suspended. It is only suspended in the case of national emergency. In the state emergency it is not suspended. ठीक है. So this is very easy question. With this being said, we are going to wrap this video also. So till now I have made videos from 2018, 19, 20, 21 and 22. So this is the 23 PYQs which are going on, और 2/3 पार्ट हमने इसका कंप्लीट ऑलमोस्ट कर लिया है. एंड आई होप कि मेरी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है आपने नोटबुक बना रखी है, आपको वो नोटबुक काफी काम आ रही है, और अब लगभग 500 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं. तो अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, आपको ये देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट बताई दिए जा चुके हैं, और जो एक्सप्लेनेशन है वो आपने अपनी नोटबुक्स में नोट कर ली है. आई होप कि यहाँ तक आते आते अब आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया हो. So with this being said, we will be meeting in the next video.